Good morning, student of class 4. How are you? I hope you all are fit and healthy. Welcome back to your EVS class. Today date is 6 January 2021 and I am teaching you chapter number 23. The land of India. Name of the chapter is The Land of India. So, student, let's do, all of you open 23 chapter. Let's do little recapitulation what we have done in our previous video. So student, in the previous video we discussed, I explained you India is the seventh largest country India is the seventh largest country in the world, and by population India is the second largest country of the world. First is China and India is the second largest country in the world. So student, we are living in which continent? That is Asia continent. We are living in which continent? That is Asia. So, and there, how many continents are there? There are 7 continents. These are huge mass of land. ये बड़े बड़े जमीन के टुकड़े हैं. And they are not connected to each other. They are very far away from each other. And how they are connected? They are connected by the waterways. सी और ओशन के रास्ते से ये सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में एक दूसरे के टच में हैं. ठीक है. सो एंड व्हेन वी आर टॉकिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, व्हेन वी आर टॉकिंग, सो north to south it stretches across about 3200 किलोमीटर. अगर नॉर्थ से साउथ की ओर देखें तो ये कितना फैली हुई है हमारी कंट्री? 3200 किलोमीटर. एंड व्हेन वी सी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट स्ट्रेचेस across about 3000 किलोमीटर. Okay, 3000 kilometer. And if you see, because in this chapter we will study about the physical division of our country, that is India. In this chapter we will study the physical division of our country. Physical
physical division of India. So it is divided into 6 parts, and one by one I will explain all the physical division of our country. And what does it means? It means that when we see, we know that student, we are living on the surface of the earth. हम कहाँ रह रहे हैं बेटा? हम लोग अर्थ के सरफेस पे रह रहे हैं. Is it clear? So what type of a land? So student, when we observe the surface of the earth, so what? But we are talking only about our country India. I am not talking about the whole world. What type, what form of a land we will observe? Mountains, hills, plains, desert, forest, plateaus, and water bodies. And water bodies. Water body means lake, pond, river, sea, ocean. These are the water bodies. And if you see our country India, it is surrounded by 3. If we observe our country, it is surrounded by water on 3 sides, because when we are talking about the directions, there are 4 directions: north, south, north on the top, south on the bottom, north, top, south, bottom, east, right hand side, and west. This is towards the left. If we observe the directions, so top direction is north, bottom is the south, right hand side east, and left hand side that is your west. So from 3 sides, that is west, east and south, it is surrounded by water. 3 side it is surrounded by water. क्योंकि नॉर्थ पार्ट में, ये जो नॉर्थ पार्ट है, यहाँ सब क्या आपको क्या मिलेंगे? माउंटेन्स. नॉर्थ पार्ट में आपको क्या मिल रहे हैं बेटा? माउंटेन्स. नॉर्थ पार्ट में आपको मिल रहे हैं माउंटेन्स. और ये जो आपका ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, दिस पार्ट इज सराउंडेड बाय द वाटर. इन द ईस्ट साइड बे ऑफ बंगाल, वेस्ट साइड अरेबियन सी, एंड साउथ दिस साइड इंडियन ओशन. Means in the north part you will see the mountains range, that is Himalayas, the world highest range, that is Himalayas. क्योंकि वर्ल्ड के सबसे ऊंचे जो माउंटेन्स रेंज है वो हिमालयाज है. ठीक है. सो माउंटेन्स आर इन द नॉर्थ, वहां वाटर से सराउंडेड नहीं है. इट इज सराउंडेड बाय 3 साइड्स विद वाटर, दैट इज द ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट. ईस्ट साइड बे ऑफ बंगाल, वेस्ट साइड अरेबियन सी, एंड साउथ साइड इंडियन ओशन. Then after this student, these are the different land forms. These are the different land forms: mountain, hills, plains, desert, forest, plateaus, water bodies like lake, river, sea, oceans. These are the water body which are
present on the surface of the earth. And see, after that, if you see that India is our country, India, it is divided into how many states? 28 states and 8 union territories. How many states are there? 28 states and 8 union territories are there in this 8 union territories. And even in the previous video I have already explained you what are the reason why we put this area in union territories, because in all the states we have the chief ministers. So in every state you have a head of that state, that is government head, that is known as the chief minister. But these union territories, they don't have chief ministers, and the head of these union territory is the president of our country and his representative. See these union territories. And what are the reason, that I have also discussed with you, and the name of the union territories that I have already written on the board in the previous video. So these things we have already discussed. Now when we are talking about the physical division of India, then if you want to note down, you can write physical divisions of India. Of India. So physical divisions of India. So what are these physical divisions which we have to study in this chapter? That is the great mountains, the great mountains, and these mountains are in north. These mountains are in north, जो मैं already आपको बता चुका हूँ, क्योंकि west, east और south it is surrounded by water bodies, but in the north we have great mountains of the north. Then the northern plains, the northern plains. Third is the great Indian desert, which is known as Thar desert. The great Indian desert is known as Thar desert. Fourth one is the peninsular plateau.
peninsular plateau, because from three side it is surrounded by water. When you see the map of your country, see the map of your country, here it is Bay of Bengal, west side this is Arabian Sea, and this is south side and this is Indian Ocean. So shape is like a triangle, its shape is like a triangle. So the peninsular plateau. Okay, and the next thing, coastal plain. Coastal plains means part of the sea water which is in touch of the land. सी वाटर का वो पार्ट जो लैंड के टच में है, दैट इज कोस्टल प्लेन्स. 1 2 3 4 5 and 6 one is islands. Lakshadweep and Andaman Nicobar Island, that is the 6th physical division. And student, out of these 6 physical division, that is the great mountains of the north, the northern plains, the greater Indian desert, the peninsular plateau, coastal plains and island. Out of all these 6 physical division, सबसे ज्यादा पोर्शन जिसने कवर किया है आउट ऑफ 6, दैट इज योर पेनिनसुलर प्लेट्यू. जो आपका प्लेट्यू पोर्शन है, सबसे ज्यादा लैंड इसी ने कवर किया, सबसे बड़ा एरिया इसी का है, द पेनिनसुलर प्लेट्यू. ठीक है, जिसमें आप डेक्कन प्लेट्यू में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो इट कवर्स द मैक्सिमम पार्ट. ठीक है, जैसे ये माउंटेन रेंज है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हैं. दे आर आल्सो नोन एज द फूड बाउल ऑफ आवर कंट्री. ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ओके, दैट इज योर थार डेजर्ट. पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड. तो जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू पार्ट है, ये पार्ट ने सबसे ज़्यादा बड़ा पार्ट जो है वो यही है, आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू का है. ठीक है, सो दिस आर द 6 थिंग्स विच वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. अब नाउ let's start with the first one, that is the great mountains of the north. The great mountains of the north. नाउ अब जब हम लोग ग्रेट हिमालयाज की स्टडी करेंगे बेटा, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द पिक्चर ऑफ द हिमालयाज. This is the picture of the Himalayas. Here it is written, start from Jammu Kashmir. This is the picture of Himalayas. Now let's observe this thing. Now student, when we are talking about the Himalayas, so I have already explained you, Himalaya is the
वर्ल्ड हाईएस्ट रेंज इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में जितने भी माउंटेन्स हैं उसमें सबसे ज्यादा हाइट वाले माउंटेन्स जो है वो आपकी हिमालयन रेंज है। इज इट क्लियर? वर्ल्ड के जितने भी माउंटेन्स हैं, अगर हम वर्ल्ड के आउट ऑफ, अगर हम एक लिस्ट बनाते हैं हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, अगर हम एक लिस्ट बनाते हैं कि हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, तो आउट ऑफ 10 9 आपको इसी रेंज में मिल जाएंगे, हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। इज इट क्लियर? हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड की अगर हम एक लिस्ट बनाते हैं, वर्ल्ड में सबसे 10 हाईएस्ट माउंटेन कौन है, उन 10 में से 9 आपको इसी रेंज में मिल जाएंगे। दैट इज द रीजन आई टोल्ड यू दैट हिमालयास रेंज, दिस इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, दिस इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। इज इट क्लियर? नाउ सी स्टूडेंट, यहां इन माउंटेन्स की, और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द, सबसे पहले अच्छा हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं विच पार्ट ऑफ द कंट्री इज हिमालय रेंज, कहां से कहां तक है, फिर आफ्टर दैट फर्दर डिस्कस करते हैं सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। This we are talking about our country, states covered by Himalayas। Which are the states which are covered by Himalayas? So जम्मू कश्मीर, वैसे अब जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं रह गया है, पहले जम्मू कश्मीर स्टेट था, इट इज गिवन इन द, बट अब ये क्या है, यूनियन टेरिटरी हो गई है आपकी, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में। सो जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। उत्तराखंड इज, पहले क्या, उत्तराखंड इज द पार्ट ऑफ द यूपी, नाउ इट इज नॉट इन यूपी। पहले उत्तराखंड भी यूपी का ही पार्ट था, नॉट, नाउ इट बिकम डिफरेंट स्टेट। हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, उत्तराखंड in the north, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड इन द नॉर्थ, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। ओके,
इंडिया में इतने पार्ट्स हैं इसके। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सी दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। तो यहां से आपका हिमालयस रेंज स्टार्ट हुई है, जम्मू कश्मीर, फिर आपका ये देखो आ गया हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, देखिए जम्मू कश्मीर, आफ्टर दैट हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद आप व्हाइट पोर्शन देख रहे हो बेटा, फिर इतना पार्ट हिमालयास का कहाँ चला गया, नेपाल में चला गया। फिर ये पार्ट जो चला गया हिमालयास का, ये पूरा नेपाल कवर कर रहा है। एंड आफ्टर दैट अगेन फिर यहाँ पे आप लोग देखोगे सिक्किम, ठीक है, ये यहाँ पे फिर ये इंडिया में हिमालयास आए, ये सिक्किम में, और फिर उसके बाद इसकी बाउंड्री किससे है, भूटान से भी है, एंड देन अरुणाचल प्रदेश। तो हिमालयास आपका देखो किसको टच करते हुए जा रहा है, जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के बाद आपका आ गया हिमाचल प्रदेश, देन उत्तराखंड, एंड उत्तराखंड की जो बाउंड्री है वो नेपाल के संग है। आफ्टर दैट दिस हिमालयन रेंज गोज इनटू नेपाल। ये हिमालयन रेंज कहाँ चली गई, नेपाल में चली गई। नेपाल जहाँ पे, यहाँ नेपाल के देखो बाउंड्री खत्म हो रही है, तो यहाँ छोटा सा पोर्शन जो कवर हो रहा है दैट इज ऑफ द सिक्किम। ये किस में आ गया, सिक्किम। अब सिक्किम की बाउंड्री किससे आ गई, भूटान से, एंड फिर हियर द भूटान की बाउंड्री किससे आ गई, अरुणाचल प्रदेश से। सो अरुणाचल प्रदेश तक आपकी हिमालयन रेंज गई है। आई बात समझ में, हिमालयन रेंज कहाँ तक गई है, अरुणाचल प्रदेश में। जैसे ये देखो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड इन द नॉर्थ, ये नॉर्थ में, ठीक है। जम्मू कश्मीर से स्टार्ट हुए, फिर हिमाचल प्रदेश आया, हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड, एंड आफ्टर दैट द हिमालयन रेंज किस कंट्री में चली गई, नेपाल में। हिमालयन रेंज किस कंट्री में चली गई, उत्तराखंड के बाद किस में चली गई, नेपाल में। तो अब नेपाल से भी बाउंड्री किस स्टेट की लगी, उत्तराखंड की, एंड हिमालयास उसके बाद फिर कहाँ आए, इंडिया के किस पोर्शन में आए, सिक्किम में। आफ्टर सिक्किम अगेन ये रेंज कहाँ चली गई, भूटान में, ठीक है। फिर ये रेंज इंडिया के पोर्शन में कहाँ आई, अरुणाचल प्रदेश में। ये कंप्लीट आपकी हिमालयास रेंज है। आगे बात समझ में, तो जितना पढ़ाया इसकी छोटी सी रिकैप्चुलेशन कर देते हैं जिससे कि आपको बातें समझ में आ जाए। देखो ग्रेट माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ में माउंटेन्स थी, इसीलिए हमारी कंट्री इंडिया वाटर से वहाँ सराउंडेड नहीं है। सराउंडेड कहाँ है, वेस्ट, ईस्ट और साउथ में, और नॉर्थ में क्या है, ग्रेट माउंटेन्स है। तो ये कौन सी रेंज है, दिस रेंज इज नोन एज हिमालयास रेंज है। ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट रेंज है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, तो आप देखोगे उस आउट ऑफ टॉप 10 में टॉप 9 यू विल फाइंड इन दिस रेंज, दैट इज योर हिमालयास रेंज। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री। तो आवर कंट्रीज में हिमालयास कहाँ है, इट स्टार्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, एंड आफ्टर दैट हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। नाउ जम्मू कश्मीर इज नॉट अ स्टेट, यूनियन टेरिटरी, एंड उत्तराखंड वंस अपॉन ए टाइम उत्तराखंड is a part of a UP, but now Uttarakhand is separated from the UP. Now तो जम्मू एंड कश्मीर में हिमालयस रेंज, हिमाचल प्रदेश में हिमालयन रेंज, उत्तराखंड में हिमालयन रेंज नॉर्थ में, एंड देन सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश क्या है, अरुणाचल इज द लास्ट, यहाँ पे इसका क्या एंड हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश पे हिमालयस यहीं तक है, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ पे इसका एंड हो जा रहा है। लेकिन व्हेन इट इज जम्मू एंड कश्मीर से जब से स्टार्ट हो रहा है तो हिमालयन रेंज दे आर आल्सो इन 2 डिफरेंट कंट्री,
क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। और कौन दो कंट्रीज है जिनको टच करते हुए माउंटेन्स हिमालयस जाते हैं, दैट इज नेपाल एंड भूटान। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।